So I always like to start my session with a note that I would love to change this world, but they won't give me the source code. I truly believe that this entire world is a software program, and we all humans are artificial intelligence plugins. And believe me, in next 10 minutes, I'll prove you this. That our brain works in a very, very similar way, like any typical artificial intelligence. And that's what we, as an investigator, as an ethical hacker, use the same information, same details against you to catch you. So today, I'm going to share some of my experiences while investigating some of these thrilling cases. I'm going to share with you some recent cases first before I take you to that entire journey. During lockdown, on 23 March, it happened. I got a call, I think on 2nd April or something, from Lucknow commissioner. And he asked at 11 p.m. And he said, Amit, I need your urgent help. So what happened? एक डॉक्टर को गन पॉइंट पे लूट लिया किसी 8 बजे. ओके, और हमें उसको पकड़ना है किसने लूटा, because this is the time when doctors are doing most for us, and if we can't catch that criminal, एक गलत मैसेज. How much time do we have? In next few hours. By morning, we need to know the criminal. कितने बजे होगा? 8. Okay. So, because I don't have the slides, he gave me a spot. यहाँ से गाड़ी चोरी हुई. Okay. और क्या क्या गया है? उसका फोन भी ले गए. Okay. फोन का लोकेशन कितनी देर तक आया? बोले 5 मिनट का लोकेशन आया. And we know कि इस ट्रैक पर गए. उसके बाद फोन ऑफ. Did we have any GPS in the car? Yeah, we had GPS. Which model? He gave me the model, and then I quickly searched in Google and found that GPS can work only over Bluetooth. So because phone is off, we cannot get the data. I said, okay. So I was just struggling around the possibilities and informations and how can we catch what the criminals. And suddenly the officer said, Amit, because it was almost night time and a lockdown, so nobody could actually see it. तो कोई ऐसा चश्मदीद नहीं है जिसने देखा. एंड सेकेंड थिंग, जो फोन की लोकेशन है वो 5 मिनट बाद बंद. ऐसे क्या बोला आपने? फोन की लोकेशन 5 मिनट बाद बंद हुई और किसी ने देखा नहीं. हाँ, बिंगो, देन वी कैन कैच. अरे ये तो मैं सोच रहा था कि these two things are working against us. You know, if these two things are true, we can definitely catch them. How? It's simple. यदि उस रोड पर कोई था ही नहीं, and only this particular car was moving from here to there, and we know that 5 minutes of movement, then all these towers, telecom towers, those are on that road, they would have just changed the locations of those phones, those were of those criminals. यदि मुझे सारे टावर के टम्प मिल जाए और मैं सिर्फ कॉमन नंबर एनालिसिस निकालूं कि who all were those people that were moving at that time from here to here, क्योंकि मैंने वो टावर डम्प निकाला. मैं टाइमिंग पता था कि 1 बजे से 8:05 तक का फोन ऑन रहा है. सो वी नो द ट्रैक किस डायरेक्शन में गाड़ी गई और उसका कॉमन नंबर एनालिसिस किया. एंड आई थिंक विद इन 2 hours 3 hours वी गॉट दोस 2 numbers. Fortunately it was lockdown, so those criminals could not move out from Lucknow. They were still in Lucknow. सुबह 6 बजे जेल में पहुंच गए. I was in Hyderabad. It was 22nd July of 2017 sometime. And I got a call from a very popular journalist from Delhi. And she said, Amit, I need your help. I said, what happened? And she said, I received an email from a girl. And this girl is committing suicide tonight. And she said that because she's having some personal issues, she's going to commit suicide, and she wants this journalist to create a story on her life later. It's strange. Do you know that girl? No, I don't know that. Did she ever contact you through SMS or through? No, she does not know my phone number. She had just sent me an email on my normal open email ID, which is like on her website. And there's no other connect that I have with that girl, but she's going to commit suicide and I want to save Supachar. Okay, send me that email. मेल मुझे आई. मेरे पास सिर्फ एक ईमेल है और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं. और वो लड़की कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है.
अब जब ये मेल को आप 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको 5 चीजें मिल जाएंगी। पहला, उसकी एज 20 से 25 साल हो सकती है क्योंकि अभी उसने कॉलेज पास आउट किया है, फिर काम करना स्टार्ट किया, वो किसी हॉस्पिटल में काम करते। थर्ड, फोर्थ, उसका एक बॉयफ्रेंड है जो दूसरे रिलीजन में है। ओके, अब ये सारी चीजें जो मुझे मिली, इसको लेकर आप गूगल पर ग्राफ सर्च करते हैं। एंड आई डिड दैट ग्राफ सर्च एंड आई ट्राइड टू फाइंड हर फेसबुक प्रोफाइल एंड अदर सच सोशल मीडिया। When I did so, I found 8 different profiles matching that criteria. Now, इस 8 में से कौन सा हो सकता है? No idea. और 8 का unfortunately कोई भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं है. So the last post that all of them had made was almost 2 months old or 3 months old. So I could not get the real live location. So I replied to that email to that girl that life is beautiful and ये तो मेरे संग भी हो गया, मैंने भी जिंदगी में 4-5 बार सुसाइड करने का सोचा, बट मैंने नहीं किया, ठीक। And I tried to console her from my whatever good emotional response I could write. So आज से 1 साल बाद आप इस बात पे हंसो, इन सब चीजों को आप इतना सीरियसली बात, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस ऑल। सो प्लीज, मैंने नंबर दिया अपना और वो जर्नलिस्ट को, मैंने कहा हमसे बात करो एंड You'll see, आज मत करो, कभी और कर लेना कि करनी है सुसाइड। Honestly speaking, मैंने बिल्कुल ऐसे ही बोला, मुझे थोड़ा समय मिल जाए। उस लड़की ने, अच्छा उसके साथ मैंने उस ईमेल पर एक आईपी लॉगर अटैच कर दिया। वो क्या होता है कि जब आप ईमेल खोलोगे तो मुझे आपकी लोकेशन मिल जाएगी, प्रोबेबल लोकेशन। सो मुझे पता था कि यदि ईमेल खोलेगी तो 2 चीजें प्रूफ हो जाएंगी। पहला कि वो जिंदा है, दूसरा उसकी लोकेशन। तो मैंने वो भेज दिया मेल और पूरा सोशल मीडिया शुरू कर दिया कि कुछ और ढूंढते हैं इसमें, कहीं कुछ मिल जाए। इस बीच क्या हुआ कि हम सोशल मीडिया पर कर, टू मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने रात के 1 बजे वो मेल खोल, मुझे पिंग आया, मेल पढ़ ली गई और उसका मुझे आईपी एड्रेस मिल गया। वो आईपी एड्रेस था मुंबई, पवई के पास, IIT पवई के पास एरिया। वो जैसे मिला मैंने कहा थैंक गॉड, तभी तक कुछ था। मैंने जर्नलिस्ट को बताया, मैंने कहा देखो यदि हमने इसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर दिया तो फिर अभी वो, क्योंकि सुसाइडल जो इंसिडेंट्स होते हैं वो मोमेंटली होते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है आपकी लाइफ में कि आप कुछ और आपको नहीं मिलता, तो हमें उस समय उस पर डाइग्रेस करना चाहिए, उसको कहीं और ले जाना चाहिए। वो थॉट चेंज करना ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। सो आई थॉट मैं शायद वो कर पाऊँ, तो अभी तो ये थोड़ा सा डिले हो गया मामला। और उसके बाद आईपी एड्रेस को ट्रेस किया तो वो आईपी एड्रेस से जो लोकेशन मिलती है हमें, इट इज ऑफ ऑल अराउंड 25 किलोमीटर ऑफ ज्यादा, उससे ज्यादा एरिया, क्योंकि वो काफी डेंस एरिया है। तो मैंने एक ऑफिसर को फोन किया मुंबई में, ही कनेक्टेड मी विद द लोकल SHO और उन्होंने मुझे रात के 1 बजे मैंने उनको डिस्टर्ब किया। लोगों को लगता होगा पुलिस ऐसे कैसे काम करती है, बट आई रिक्वेस्टेड बॉस, ये 8 फोटोज और ये लोकेशन है, ये 8 फेसबुक प्रोफाइल की लड़कियों की फोटो मैंने देखी। मैंने कहा इसमें से ढूंढो, इसमें इसके आज किस एरिया में कौन सी लड़की रहती है, वही है और कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी दिमाग में एक चीज आया, मैंने उस 8 की प्रीवियस सारी कहीं पर उसने कोई लोकेशन टैग किया और निकाला, तो कुछ फेसबुक प्रोफाइल ने अपनी लोकेशन को ट्रैक की, उसमें से 3 मुंबई के। मैंने कहा 8 में से 3 हो गए, अब सिर्फ ये 3 ढूंढना है। अभी यही कश्मकश चल रहा है। उस 3 में भी मैंने उनके जो फ्रेंड्स थे, हर एक के 350 से 400 फ्रेंड, उनको एनालिसिस करना चाहिए कि उन्होंने कोई अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी छोड़ा, एंड आई कुड कनेक्ट देम टू इट। ये करते करते सुबह हो गई, वो लड़की नहीं मिली और सुबह 6 बजे मुझे एक फोन आया, वो उसके दोस्त का था। उसने कहा सर मैं इस लड़की को जानता हूँ और शायद यही है, और ये मैंने उसको बोला भी था कि ये लड़की की लोकेशन जो है वो पवई एरिया। तो मैंने जो फ्रेंड्स के ईमेल आईडी मिले थे उन पे ईमेल कर दिया था रात को, सब करीब मुझे 20-25 ईमेल आईडी मिले, मैं सबका भेजा कि मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ, इन 3 में से किसी को भी आप चाहते हैं तो आप बताएं, और उसकी लोकेशन पवई। तो एक का फोन आ गया, हाँ पवई मैं समझ सकता हूँ कौन। पुलिस को बताया गया, पुलिस गई तो वो लड़की अपनी दोस्त यहाँ थी और दोस्त का घर खाली था, इसलिए वो वहां थी, इसलिए कोई उसको पहचान नहीं पा रहा था। जब इंस्पेक्टर ने उस लड़की को बोला कि ऐसा ऐसा है और आप कैसे कोई ईमेल गई, उसने कहा आपने मुझे ढूंढा कैसे? उसने कहा हम लोग टेक्निक है, होती है, कर लेते हैं कुछ। होती कैसे किया बता। उसने बताया कि है कोई दिल्ली से, उन्होंने हेल्प, बात करेंगे। बात
मैंने कहा थैंक यू, अब तो तुमने बात की, क्योंकि मैंने मेल पे लिखा था बात करने के लिए। बोलती सर नहीं, आपने मुझे कैसे? मैंने कहा देयर आर टेक्नोलॉजी एंड आई थिंक वी कैन फाइंड एनीबॉडी। उसने जो बोला उसने मुझे हिला दिया। उसने कहा सर आप यदि मुझे ढूंढ सकते हैं तो फिर उसे भी ढूंढ सकते हैं। मैंने कहा ये कौन? उसने कहा मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई थी वो आदमी एक्चुअली मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है और उसके पास मेरी कुछ फोटोग्राफ्स, मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं बता पा रही, अपने घर को भी नहीं बता पा रही, क्या करूं? और मैं पुलिस के पास नहीं जाऊँ, मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैंने सो आई वाज देयर, आई वाज स्ट्रगलिंग विद दैट डेटा। मैंने उसका फिर से फेसबुक पूरा एनालिसिस किया तो मुझे एक पुरानी पोस्ट मिली जिसमें लिखा था कि इट वाज अ बैड डे, माय फोन गॉट लॉस्ट। और फिर जो सरप्राइजिंग था कि शाम को उसने लिखा था कि थैंक गॉड मेरा फोन वापस मिल गया। है ऐसे कैसे होता है? किसी का फोन खो के मिला? कुछ अजीब है। मैंने उससे बोला तुम्हारा फोन खोया था? हाँ। मिला कैसे? सिक्योरिटी गार्ड ने दिया। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा किसने दिया? तो वो बच्चा देके गया। मैंने कहा फोन दिखाओ। फोन स्कैन किया तो फोन के अंदर एक ट्रोजन वायरस है। ट्रोजन क्या करता है कि आपके फोन का सारा डेटा किसी सर्वर पर अपलोड करता है। सो आई गॉट, ये एक जर्मनी के सर्वर पर सारा डेटा गया है इसके फोन का, और वो उस ड्यूरेशन में ट्रोजन डाल के इसको दे दिया। एंड द गाय वाज मॉनिटरिंग दिस फोन। पर अभी भी हमें उस बंदे के बारे में नहीं पता था कि कौन है इसके पीछे। मैंने फिर से फेसबुक एनालिसिस When I analyzed, I found that all of these profiles are fake. ये लोग रियल लोग ही नहीं है। करे क्योंकि वो प्रोफाइल पे किसी और की है, मेरठ में किसी लड़की की है, वो जो लड़के बता रहे वो तो कर्नाटका में रहता है किसी और का। सो ऑल दीज आर क्लोन प्रोफाइल्स, फेक। फिर मैंने फेसबुक को लिखा कि मुझे इन सब की लॉगिन डिटेल्स दीजिए, ये लोग कहां से लॉगिन करते हैं, कहां से ऑपरेट करते हैं। फेसबुक ने मुझे अगले दिन डिटेल्स भेजा and I found कि all these profiles are managed, run by same person, एक ही IP, और वो IP एड्रेस उसके बॉयफ्रेंड का। मैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता, पर ये वर्चुअल वर्ल्ड ऐसा है। October 2010 and I was in Finland and I got a call from Paris police. And they said कि केस में आपकी हेल्प चाहिए। I was working with a brand मोबाइल फोन कंपनी जो काफी ब्रांडेड है, और वो मोबाइल फोन जगह यूज हुआ था, so they wanted my help. I reached to Paris. They took me to a city called Rennes, which is 2.5 hours away from Paris. And they introduced me to a lady. और लेडी ने कहा कि मुझे कॉल आया और उस कॉलर ने मेरे से कहा कि मैंने तुम्हारी डॉटर को किडनैप कर लिया है, just pay 25,000 euros in an hour or you'll kill. Lady got shocked. She thought कि कोई prank कर रहा है, so she disconnected the call. After a few minutes, again she received the call. The caller said that don't take it lightly. You will regret all through your life because you will kill your daughter. And these were times when not everybody used to have the phone, so she could not check the result of it. So she started negotiating with the caller. She said, no, I'm not that rich. I don't have that much money in my account. I can't transfer so much money. Please give me something. And the caller said, don't tell me how rich you are. Because wherever you are right now in your bedroom, to your backside, there is a wall painting. And that itself cost you around 5,000 euros. तो जो इतनी महंगी पेंटिंग अपने बेडरूम में टांग सकता है, मुझे पता है उसके अकाउंट में कितना है। The lady got shocked. She ran from her bedroom to the drawing room and she said, no, there's no such wall painting. I think you are mistaken. You have called to the wrong person. And the caller said, wherever you are right now in your drawing room, to your right side, एक flower pot, और उसकी cost $3,000. So please open your laptop, transfer 25,000 euros, or you will kill her. The lady was completely shocked. She opened her laptop, transferred that money. After 1.5 hours, her daughter came back safely. She was not kidnapped, but she was confused. ये हुआ कैसे? She complained to the police. Police investigated the entire house. They didn't find anything. No surveillance, no camera, nothing. So they zeroed down their investigation on the mobile phone. And that mobile phone was a typical mobile phone. And I was one of the architects of that mobile phone. So I was caught. आप देख लीजिए कुछ मिले। मैंने भी पूरा फोन देखा, there was nothing, no virus, no malware. ठीक है। I was coming back, I was in airport. जब एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि एक लड़का एक गेम खेल रहा है और उसके हाथ में एक फोन,
उसका कैमरा ऑन है और वो दीवार पे ऐसे लेके चला। मुझे अजीब लगा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? एंड ही शोड मी दैट वाज आल्सो सेम मॉडल ऑफ सेम सीरीज ऑफ फिल्म्स। मैंने देखा क्या गेम्स, दिस इज अ ट्रू फाइटर। कैसे काम करता है? तो इसको जैसे लॉन्च करो तो कैमरा ऑन हो जाता है, देन इट शोज यू सम ऑगमेंटेड ऑब्जेक्ट, यू हैव टू कैरी इट थ्रू योर वॉल्स, इट शो यू सम ऑगमेंटेड ऑब्जेक्ट्स, क्लिक इट, कैप्चर इट एंड गिव यू सम पॉइंट्स। बड़ा अजीब सा गेम। मैंने तुरंत उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फोन किया, मैंने पता करो ये ट्रू फाइटर गेम है क्या? हाँ है। मैंने फ्लाइट कैंसिल की, वापस उस पूरे गेम को एनालाइज किया तो पता पड़ा कि उस गेम से 150 इमेजेस उस लेडी के घर की एक रोमानिया के सर्वर पर अपलोड। So it was clear that criminal knew that what are where because of those images. But the bigger question was that how could he know the exact location of that lady? Because even today it is difficult to identify whether I am standing here or in that corner with whatever technology we have. Criminal ये कैसे पता करें? मैंने Google किया. And eventually I found some white papers. And those white papers told me that there is a possibility of tracing a person inside a house using Wi-Fi signals. And we all have Wi-Fi in our house. What I'm trying to tell you, कि मैं आपके Wi-Fi से बता सकता हूं कि आप किस समय अपने घर के किस कोने में बैठे। That is so easy. Because when you go closer to your Wi-Fi, your signal level goes up. When you go away from your Wi-Fi router, your signal level goes down. So when these images were captured, these were captured along with the Wi-Fi signal level of that point. And when the person was talking to that lady, he was able to see the real-time Wi-Fi signal level of her phone. So he can figure it out quickly that where could she be. Isn't it amazing? That too in 2010. Today, after 10 years, the technology is so vast and vivid that anybody can create any sort of illusion in front of you through technology. Because we are surrounded with technology. And that's why I always say that criminals are innovators, they always teach. How did I catch this criminal? Because eventually we arrested this guy. We found him in another country. That was again interesting. But today, I will leave you with this message. Remember, conversations are happening, whether you are there